looking at it. So we start with our geometry 2 chapters. One is triangles and one is circle. Okay, let me give you a brief idea about triangle. Triangle chapter has been shortened after COVID, but however, instead of all similarity criteria, CBSE has dropped one criteria. We'll slowly understand that also. But they have carefully, there's a problem in circles in which that criteria is used. So the syllabus also mentioned that this criteria is not to be studied, but its implication is there in one problem. हम वैसे नहीं, हम उसको भी पढ़ लेंगे, मतलब कुछ nothing so great, but it will be used in one of the problem in circles, and that problem usually comes in your pre-board. ठीक है, आशका मैडम और आन्या मैडम, ठीक है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कृपया अपने अपने कंप्यूटर्स कैमरा ऑन कर लीजिएगा. सो शैल वी स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. और चैप्टर है ट्रायंगल सिमिलैरिटी. पहले कुछ जनरल ज्ञान की बातें और उसके बाद टॉपिक की बातें. बड़ा इजी चैप्टर है, इतना कुछ खास नहीं. सिमिलैरिटी. Okay, when we used to talk about this word in chemistry, I always used to say similarity मतलब कुछ चीजें एक जैसी और कुछ चीजें एक ग्रेजुअल पैटर्न में आपको दिखेगा. जैसे दिस इज फ्लैट नंबर 1303, मेरे ऊपर है 1403. हमारा प्लान सेम रहेगा दोनों फ्लैटों का, लेकिन उसकी हाइट ग्राउंड से मुझसे थोड़ा ज्यादा है. और अगर हम 1503 को देखें, वही प्रोपोर्शनली थोड़ा ज्यादा है. राइट, सो वी से similar physical properties. Maybe the mass will undergo slow change, right? Some properties will be same. Similarity को mathematics में पढ़ने से पहले आइए revisit करते हैं something which is known as congruence. So what was congruence? Two figures are said to be congruent if they can be exactly superimposed one over the other. So for example, I'm drawing a triangle. That's the easiest way to understand. Okay. So let this be triangle and let me clone this triangle. Okay, this is one more triangle. Now these two triangles are called congruent. ये आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसको उठा के इसके ऊपर रखने से fit to fit मैच हो जाएगा. You might be seeing this as an equilateral. अगर ये scalene भी होता तो भी ये good to good बैठेगा. तो what did we understand? We understood that there was a term called CPCT, corresponding parts of congruent triangle. मतलब ये अगर साइड है दूसरे साइड के इक्वल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये एंगल उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा. ठीक है, अब जरा सा कुछ इसको चेंज करते हैं. मान लीजिए मेरे पास कुछ मेरे पास ट्राइंगल है समथिंग. इसको जानबूझ के थोड़ा सा स्केलिन टाइप करते हैं. ऐसा स्केलिन ट्राइंगल है, ठीक है, और इसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक और बनाते हैं, एंड दिस इज अ कॉन्ग्रुएंट. बैठ जाएगा ये इसके ऊपर, ठीक है. लेकिन इतना प्यार तो आपके साथ भाई लोग करते नहीं है ना, तो आपके साथ क्या करेंगे, थोड़ी सी दुश्मनी करेंगे, तो आपको ट्राइंगल दोनों ऐसे दिखाएंगे. ले बेटा आप ढूंढ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है. तो और ये भी क्या है, एक फिगर के अंदर कर देंगे, तो बार बार आप थोड़ी कट करके निकालोगे. सो यू नीड सम क्राइटेरियाज टू प्रूव वेदर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर. हैव यू अंडरस्टूड? इनिशियली देखने में सब इजी लगता है, लेकिन जब ट्राइंगल के अंदर ऐसे फिगर्स रहेंगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. So two things we need to understand in congruency, that the naming pattern should be same. Like if you say triangle ABC is congruent to PQR, it stands AB is equal to PQ. अगर वो वर्डिंग्स आप गलत करोगे, आपका सिमिलैरिटी में भी सब गलत आएगा. सो वो तो याद रखना है 9 से, ठीक है. नंबर 1. नंबर 2, कॉन्ग्रुएंस में हमने क्या क्या क्राइटेरिया देखा था. कॉन्ग्रुएंस में हमने देखा था that there was a congruence criteria called SAS, side angle side, two sides and the angle included between. फिर हमने देखा था ASA, two angles and the side included. Then हमने देखा था AAS, angle side. उससे हमने that was actually AAS जो हम कहते हैं वो ASA का ही एक और corollary है, because if two angles are equal, third angle has to be equal. So AAS was our corollary. Then we found something called SSS, if three sides are equal. Then the fifth one was RHS, right hypotenuse side. Now this RHS is something you need to keep in mind. That is what has been cut off from your syllabus, but has implication in one problem in circles. तो हम सब चीजों को देखेंगे. Congruency आपको समझ में आया. Congruency में अगर हम ऑप्टिक्स से बात करें, लाइट से, तो क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन फैक्टर इज 1. एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है. आते हैं अभी सिमिलैरिटी में. Similarity को पहले, वैसे what I'm trying to write is very desi. This is nothing to do with your what you call mathematics, but still अगर हम ऑप्टिक्स की भाषा में देखें तो यहाँ मैग्निफिकेशन होगा not equal to 1. That means यहाँ पे मैग्निफिकेशन can be greater than 1 or less than 1. समझ में आ रहा है?
आइए कोशिश करते हैं कुछ एक बनाने के लिए। जैसे ऐसे एक मैंने बनाया एक फिगर, ठीक है, इसको ऑप्टिक्स की भाषा में समझते हैं। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ठीक है। इसको हमने फिर से क्लोन किया, यहां पे लाए इसको, और ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है। पहले सोचते हैं व्हाट इज इंटरेस्टिंग हियर एंड देयर। ये एक के ऊपर एक फिट नहीं बैठेगा, पर एक को देखने से आप दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अ पपी एंड अ डॉग, अ किटन एंड अ कैट। ये हो गया किटन, हो गया ये किटी कैट, हो गया कैट, हो गया। एक को देखने से आप सबको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यहां मैग्निफिकेशन कैसा है, या तो ग्रेटर देन 1 आएगा या मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। समझ में आया पहली बात। इन सब में जो सबसे बड़ी खासियत है, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम होंगे, कुछ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के रेशियो सेम होंगे। What I mean by that, if you look at the angles are not changing. The angles are the same. But if you look at the arm length, then if this arm was say 2, 3, 4, then if this is 4, this is 6, and this is 8. So there's a proportional increase. और ये अगर है 2, 3, 4 से, मान लीजिए ये इसको मान लेते ये 6 है, ये 3, 3, 9 हो जाएगा, ये 4, 3, 12, और इसको 2 टाइम्स पकड़ लेते हैं roughly. So if this is 4, then this is 6 and this is 8. ऐसा नहीं होगा कि इसका डबल अगर ये हुआ तो ये हाथ का भी डबल ये होना, तभी ना आपका फोटो और आपका पोस्टर फोटो एक जैसा दिखेगा। Your passport photo as in your iCard, which we call it as a stamp size, and your passport photo as appearing as a profile pic on your Instagram or Facebook, wherever you are, same photo, then they are the same. कान उतना ही बड़ा हुआ है, उसी रेशियो में आंख बड़ा हुआ है। अदरवाइज यू लुक लाइक सम सुपर्णखा जैसा दिखेगा आपको ना, ये पिनोकियो, नाक बड़ा हो गया, आंख छोटा हो गया, हमला बैठ रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऐसा है कि आपके साथ जाति की जाएगी और ये सब घूम घूम के आएगा, है ना। अब आपको सिमिलैरिटी ढूंढना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये सब तो देखने में सही है, ये क्या बिंगो मैड एंगल, एक के ऊपर एक बैठ गया, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में भी आपने ये किया है। वही माइंडसेट से हमें इस चैप्टर में भी प्रोसीड करना है। यहां हमें सिमिलैरिटी ढूंढना है, और सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज आप जानोगे तो आगे चल के फिजिक्स में जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फोर्स डायग्राम, तो ये सब बड़ा काम में आएगा, बिकॉज यू विल गेट ओनली डायग्राम। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन फॉरगेट दिस, लाइक यू कैन फॉरगेट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ यू डोंट स्टडी कॉमर्स और एडिशनल मैथमेटिक्स। बाद में आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बट दिस यू कैन फॉरगेट। एनी क्वेश्चन सो फार? Got a basic idea of what is similarity? So when we are, so are these two triangles similar? Yes, two similar triangles, two congruent triangles are always similar, but two similar triangles need not be congruent. And similarity means we are playing between kitten and cat, or puppy and a dog, as simple as that. And you have to hunt, the puppy belongs to this dog, or is the dog a parent of this puppy or not? That's the chapter all about. And for that we have got some tools. समझ में आया? सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चंस सोच लेते हैं। क्या टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं? 1 मार्कर क्वेश्चंस will be typically, this will be given, this will be given, it will be something like this. See, the 1 marker questions will be, they'll tell you that this side is 2, and they'll tell that the triangle is similar, and they'll say suppose this side is 8, they will tell you around say this side is say 3, तो इसको आपको दे दिया, मान लीजिए इसको आपको 12 दे दिया, ठीक है। व्हाट इज दिस साइड? ये आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाए, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, कुछ और चीजें सीखते हैं। इसको मान लीजिए ए दे देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं, उसी तरह इसको लिखते हैं पी, इसको लिखते हैं क्यू, इसको लिखते हैं आर। कॉन्ग्रुएंट में आप एक इक्वल साइन डालते थे ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, इस बार इक्वल डालने का हक नहीं, यू डोंट हैव दैट, बिकॉज ट्रायंगल्स आर नॉट triangles are not equal to each other. Triangles are not equal to each other. So here we will say triangle ABC is similar to triangle PQR, which means if you are talking in terms of the angles, then A has a mapping with P, right? B has a mapping with Q, and C will have a mapping with R.
दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गलत लिखा तो गलत, और कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको इसी को पहले ठीक करके लिखना है, यहां आप गलत हो गए तो पूरा आंसर गलत आएगा। सेकंड, AB will correspond to PQ, similarly BC will correspond to QR and AC will correspond to PR. Is this understood? वो अब तभी रेशियो एक जैसा, राइट right? तो आइए पहला चीज लिखते हैं कि सिमिलैरिटी में सिमिलर फिगर्स ले लेते हैं, ट्राइंगल ही नहीं, सिमिलर फिगर्स जो होते हैं उसमें रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। और जब हम रेशियो को इक्वल बोलते हैं तो ग्रेड 6 में क्या टर्म सीखा था हमने? प्रोपोर्शनल। If two ratios are equal, then they are called proportional. So we can write corresponding sides or corresponding, this is figures now, so I'll use the word measures is a better word. Measures is a better word. Corresponding measures, ठीक है, are proportional, ठीक है। इसका मतलब two circles similar? क्या it can be? Two circles are always similar. Two circles always similar होंगे. Are two squares similar? Always, always. Two rectangles need not be similar, है ना? आप सोचो, छोटा वाला कैडबरीज डेयरी मिल्क और बड़ा वाला बोर्नविल सिमिलर नहीं होते हैं, एंगल इक्वल है तो साइज प्रोपोर्शनल होंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, दो कोई भी शेप दे दिया ना आपको तो इमीडिएटली आप सिमिलर प्रूफ करने के लिए, क्या वो सिमिलर होगा? अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, आर टू रेक्टेंगल्स सिमिलर? यस, देयर विल ऑलवेज बी अ कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी सेम बिटवीन द टू साइड्स, होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया फिगर्स के बारे में। अब हम किसके बारे में सीखेंगे? अब हम सीखेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में। सिमिलर ट्राइंगल्स, so in similar triangles we have ratio of corresponding sides are equal, this is number one, and angles are equal, the two corresponding angles are equal। अगर आप चाहते हैं तो एक फिगर बना के इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्केलिन टाइप ही ट्राइंगल बनाइए, क्या इसको ओके। ठीक है, यहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा? एंगल A will always be equal to angle P. Okay, before that I should write if triangle ABC is similar to triangle PQR, अगर ऐसा है तो then this will be equal, angle B will be equal to angle Q and angle C will be equal to angle R. Similarly, AB as a side will be equal to PQ, then AC as a side, AC should be equal to PR, so this is this, and BC as a side should be equal to this. This is what is the finding of similarity. Clear? So not equal. No, proportional. Array, sorry, I lost it. They're not equal, sorry. So triangles, thank you Dipanshu. एंगल्स, एक मिनट, हाँ, एंगल्स इक्वल। अच्छा, इसके बाद हम लिखेंगे दैट AB अपॉन AB का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया? PQ शुड बी इक्वल टू, इफ यू आर टेकिंग PR
पी आर, आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं, अगर आपने नाम पी आर तो यहाँ पे ए सी, एंड इफ यू आर टेकिंग से क्यू आर तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, ओके लेकिन यहाँ भी गलती हो गया है, उल्टा हो गया ये, ऐसा नहीं, ऊपर में जो है वो मेंटेन करना पड़ता है, सॉरी। सो ए बी के बाद हमने लिया बी सी, तो यहाँ पे हम लेंगे क्यू आर, फिर हमने लिया ए सी, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पी आर। दिस इज व्हाट यू शुड, इफ ऑन द न्यूमरेटर्स यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस ट्राइंगल, देन मेंटेन दैट फॉर ऑल द रेशियोज। डिनोमिनेटर में अगर हम ये ट्राइंगल से ले रहे हैं तो मेंटेन दैट, आप इसको समरसॉल्ट मत कीजिएगा जो मुझसे गलती होगी, ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा है। इसके ऊपर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे, आज पहले ज्ञान सब खत्म कर लेते हैं, फिर टाइम बचा तो प्रॉब्लम्स लेंगे। चले सर आगे, ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ऑल फाइन, कैन आई गो हेड, राइट, चलो आगे चलते से एक और चीज की बात करते हैं। एक क्लास 9 में थ्योरम था, लेकिन वो अभी आपको पढ़ाया नहीं जाता है, पर उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ यू अंडरस्टैंड दैट देन थैलिस थ्योरम बिकम्स इजी फॉर यू। मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास ऐसा एक ट्राइंगल है, और द कन्वेंशनल वे दैट यू नो हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज दैट वेरी नाइस लवली फेरी टेल वाला फिगर जो आपको मिलता है ना हमेशा, ए बी सी, और आपको यहाँ पे एक डी दिया रहता है और ये परपेंडिकुलर दिया रहता है, इसको एच बोलते हैं हम, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल का एरिया अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसकी एरिया बोलते हैं हाफ टाइम्स ऑफ ए सी इंटू जो भी आपका एच है वो एच को ले लेते हैं, ठीक है। मोटी भाषा में बात करें तो दिस इज हाफ इंटू द बेस एंड यू मल्टीप्लाई इट विद द, इफ यू हैव बेस मींस हियर द रिलेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, जिसको आपने बेस पकड़ा है उसके ऊपर जो हाइट है आप उसी को कंसीडर करें। हाँ बीसी, हाँ वो छोड़ समझ में आया, बीसी, हाँ तो बीसी, सॉरी बीसी इंटू हाइट। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द वन व्हिच यू हैव टेकन एज बेस, द कॉरस्पॉन्ड हाइट शुड बी ऑन दैट वन इटसेल्फ, ओके। अब द इशू इज दैट एवरी टाइम इट इज नॉट नेसेसरी that your height will be inside the triangle only। तो अगर हम कुछ ऐसा बनाएं, देखो तो if I draw something which is parallel to BC, एक लाइन ड्रॉ करते हैं BC के पैरेलल, ठीक है, और हम इसमें हाइट को यहां भी मेजर कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, जो आपको एक फील रहता है ना हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर है, ऐसी कोई बात नहीं है, हाइट वैसा बाहर भी हो सकता है, समझ में आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको भी, कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, हमने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, समथिंग लाइक से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि think I don't know how much I'm think it is perpendicular parallel to AC now, let this line be parallel to AC, समझ में आया। और अब हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और कुछ परपेंडिकुलर हमारा इस तरह से है, ठीक है। अब आपको अगर समझ में आ रहा है तो ये एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, और इसको मैंने x नाम दे दिया है, ठीक है। अभी अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करें, सो आई विल से एरिया इज हाफ टाइम्स, मैंने बेस किसको पकड़ा इस बार, AC को बेस पकड़ा है, और AC का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट कितना है, CX है। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पहले आप एरिया हाइट देख रहे थे ना, वो था हमारा बचपन वाला वर्जन, द किलो वर्जन, बट इट इज नॉट दैट एवरी टाइम इट विल बी लाइक दैट। द हाइट कैन बी आउटसाइड द ट्रायंगल। हाइट मींस simply the base which you are considering, try to have a parallel on the opposite vertex and then take the perpendicular height. Is this understood? यही हम ट्रेपेजियम में भी करते हैं, कभी बाहर। See, measuring my height from foot to head is possible here, or make me stand against the wall and hold a thread which passes from my head from left to right, and you can measure my height there also. It's not necessary you have to measure me here only. Is this concept clear? ये वाला चीज क्लियर हुआ। जब भी आप ट्राइंगल का एरिया मेजर करते हो, जो भी आपने बेस पकड़ा, उस बेस पे जो हाइट है उसको लेना है। क्लियर? चलिए एक और चीज देखते हैं। ये भी है समथिंग अराउंड ग्रेड 9, लेकिन ये है प्रीवियस ग्रेड 9 कॉन्सेप्ट। हाँ कौन सा?
BX should be parallel to AC, absolutely. ये और ये पैरेलल होना पड़ेगा, तभी ना इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और हमने इन पैरेलल लाइंस के बीच में मान लीजिए मैंने यू एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये बेस इंटू ये हाइट, ठीक है ना। तो हमने एक और चीज क्या किया इसमें, हमने यहां पे मान लीजिए एक और ट्राइंगल ऐसे बनाया। दोनों ट्राइंगल लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, द टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। आर दे कॉन्ग्रुएंट? दे हैव टू बी कॉन्ग्रुएंट। सी, पिंक वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ग्रीन बेस इंटू हाइट। क्या दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर आएगा? टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कैन हैव सेम एरिया? यस, फाइन, पॉसिबल। Two congruent triangles will always have the same area, but two triangles having the same area need not be congruent. मैं उतने ही आटे से दो शेप के बिंगो मैडंगल बना सकता हूं। समझ में आ रहा है? टू ट्राइंगल्स। अब ऐसे इसको एक थ्योरम आता था और ये थ्योरम हम 9 में पढ़ते थे। ट्राइंगल्स ऑन सेम base and between same parallels मतलब रेलवे ट्रैक के अंदर जितने मर्जी ट्राइंगल बनाते जाओ, बस एक चीज ध्यान रखना है, बेस सेम होना चाहिए। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दिस वाज अ थ्योरम इन ग्रेड 9 व्हिच यू ऑल डिड नॉट स्टडी। तो इसको एब्जॉर्ब कर लो और लिख लो। ये यूज आता है, triangles on the same base and between the same parallels are equal in area. Did you understand the funda why they are equal in area? Because their bases are same, and since you are between the same parallel, your and my height will always be same. Children between the same parallels, irrespective of lean, thin, stout, they will have the same height. Standing between the same parallels. मैं और आप एक ही पैरेलल में खड़े हुए, मैं तो मोटा हूं पर मेरी हाइट और आपकी हाइट बराबर आएगी, वही वाला फंडा। और एरिया निकालने के लिए क्या निकालना चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दोनों का कॉमन है, सेम बेस। तो सेम बेस का मतलब क्या हो गया, सेम बेस का मतलब हो गया ये कॉमन बेस एंड सेम पैरेलल्स मतलब क्या हो गया, कॉमन हाइट। तो यहां से निकल गया एरिया ट्रायंगल 1 शुड बी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल 2। बस इसमें कौन सी बड़ी बात है। होप यू हैव अंडरस्टूड। चले आगे। और अभी आप आएंगे, विल कम टू योर थ्योरम वा। So remember this, triangles between the same base, on the same base and between the same parallels are equal in area. आय हाय आतिश, आज तो हमारी बात ही नहीं हुई सुबह से। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। तू क्यों हंस रहा है? तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है आजकल, है? थोड़ा सा हंसी अराफत को दे दो ना, गम में डूबा हुआ है बेचारा, मायूस। पहले हमें ऐसे लिखने देता था, वर्षा ऋतु पे निबंध लिखिए। वर्षा ऋतु में हम बाहर खेल नहीं पाते हैं और हम मायूस रहते हैं। वैसे हमारा अराफात भी मायूस है। हाँ, कहाँ लगी है? अच्छा, अंदर हो गया डेंटल ट्रीटमेंट? Oh, medicines are going on, but the cut is on. You can see the cut or internal cut हुआ है? Oh. How did that cut happen? अच्छा, teeth, but externally there is no injury, only internally it has happened. वैभव means our, ये वैभव कुछ ना कुछ परेशानी घर वालों को करते ही रहते हो तुम यार, टेंशन देने वाले। अरब को देखो, आज पासपोर्ट नहा के आया है एकदम, है ना।
पासपोर्ट नहाना मतलब समझे ना, ओनली अप टिल पासपोर्ट फोटो जहां तक होता है ना वहीं तक नहाता है वो, उसको कहते हैं पासपोर्ट नहाना। Shall we? All MUNs over. Yesterday also I met one of my student, बिरला ओपन माइंड, वो भी कुछ टैग वैग लगा के 2 सर्कल्स यहाँ पे ऐसा MUN डे। आज लास्ट, देखो इसको नाक मुंह कट गया इसका, फिर भी याद है आज MUN है क्या है। हाँ, श्रीनिधि MUN। दिस इज लाइक बोनालू, दैट मीन्स ना, जैसे रहता है आज सिकंदराबाद बोनालू है, आज गोलकोंडा बोनालू है, उसी तरह इसका MUN है, उसका MUN है। अच्छी बात है भाई, चले आगे। चलो, तो एक ही प्रूफ आता है आपका इसमें, और इस प्रूफ को हम कहते हैं थैलिस बोलो, थेल्स बोलो, जो बोलो, थैलिस थ्योरम। हैदराबाद मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन में देयर वाज दिस फ्रेंच कंपनी कॉल्ड थैलिस, एंड दिस थैलिस इज इन लाइक बोस इज टू जगदीश चंद्र बोस। विलायतों ने कंपनी बनाई, हमने नहीं बनाया। उसी तरह थैलिस, द कंपनी व्हिच इज इनटू हैदराबाद मेट्रो रेल्स, इज एक्चुअली दिस थैलिस। तो थैलिस थ्योरम, इसको हम ये भी कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर इसका प्रूफ आ गया, देन किस योर लक, गुड लक, बिकॉज यू गेट स्ट्रेट अवे 5 मार्क्स। ऐसे चेपो क्वेश्चन। इसमें थ्योरम प्रूफ करना बड़ा बात नहीं है, इसके एप्लीकेशन से बड़े पेचीदे टाइप प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो हम थ्योरम कैसा रहेगा, थ्योरम रहेगा, कंस्ट्रक्शन रहेगा, प्रूफ, उसको तो हम देखेंगे। पहले थ्योरम के स्टेटमेंट को देखते हैं, और स्टेटमेंट को ऐसे अगर मैं लिखूंगा ना तो आपको थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, तो पहले मैं बोलूंगा और उसके बाद हम स्टेटमेंट को देखेंगे, ठीक है। तो जानबूझ के एक स्केलिन ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, एंड आई नेम इट एज ABC, ठीक है। एंड नाउ listen to me and I'll give you time. First listen to me, then only the theorem will come to your, otherwise you'll fumble on words. You can add your own words, but there is a concise format of the theorem, okay. A line drawn parallel to one side of a triangle. So I need a line and I need that one side. So let's pick that one side as BC, because the figure looks most beautiful when the line is parallel as a horizontal. A line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points. A line drawn parallel to, so this line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, divides the other two sides in the same ratio. ये theorem, ठीक है। A line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in two distinct points, divides the other two sides in the same ratio, ठीक है। अब इतना फिगर आप भी मेरी तरह फिगर लिख के अपना स्टेटमेंट लिखिए धीरे धीरे करके, ठीक है ना। आगे मत बढ़, जितना पिक्चर दिखाया उतना देख। अभी ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है। तुमने क्या बोला, मिड पॉइंट थ्योरम, सुनते कम हो ना। मैंने मिड पॉइंट बोला क्या, मैंने मिड पॉइंट बोला। टू इंटरसेक्ट एनी, मिड पॉइंट थ्योरम इसका बच्चा है। हाँ, ये मिड पॉइंट में तो मिड कहां बोला, त्रिशूल घुसाएंगे ना जिस दिन समझ। ओके, आई हैड अ ट्रायंगल, a line drawn parallel to one side of a triangle. A line is now EF, drawn parallel to one side of a triangle, intersects the other two sides in two distinct points, E and F, divides the other two sides in the same ratio. That is the part that we have to understand. So I want you to now draw the triangle and say it in your own words, and then do it one by one. A line drawn parallel, but in exam don't write parallel like this. This is statement, it should be in English. To one side of a triangle intersects the other two sides
in distinct points. Distinct means unique and divides the sides in the same ratio. In the same ratio. ठीक है, इतना सा आपने लिखा. इन द सेम रेशियो को समझेंगे, लेकिन यहां थोड़ी सी और इंग्लिश समझना है हमें. लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersects the other two sides, in two distinct points and divides the other two sides in the same ratio. Okay. हेलो, हाँ हाँ कर दिया है आपका. ओके, राइट राइट. Have you understood? Now, whenever you get theorems in geometry, you will also study something called converse. Let us understand a bit about converse of any theorem. Converse just उल्टा है, ठीक है. तो इस थ्योरम में converse में कैसा रहता है? So we have a theorem. Every theorem will have an input statement and it will deliver an output statement. Converse में उल्टा हो जाता है. The output is the input statement and the input will become the output, like function and its inverse. So let's see what is the input here. The input here is the criteria of parallel. The output here is the criteria of same ratio. Converse क्या होगा? हाँ, if the ratios are same, if a line intersects two sides of a triangle in two distinct points and divides them in the same ratio, then the line must be parallel to the थर्ड साइड. ये उसका कन्वर्स आएगा, जो कि बाद में पढ़ेंगे. आपको समझा के रखा कि कन्वर्स और थ्योरम में फर्क क्या है ना. हर पढ़ना लिखना नहीं करने वाला बच्चा सारा दिन वीडियो गेम खेलता है. हर वीडियो गेम खेलने वाला बच्चा सारा दिन पढ़ता लिखता नहीं है. एज सिंपल एज दैट. व्हाटएवर इज इनपुट हियर, यहाँ पे इनपुट क्या है? पैरेलल क्राइटेरिया. आउटपुट क्या है? रेशियो. वहां पे इनपुट क्या होगा? रेशियो क्राइटेरिया. आउटपुट क्या होगा? तो इसको देखने से यू शुड बी एबल टू योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट द कन्वर्स. इफ अ लाइन intersects a triangle's two sides of a triangle in two distinct points and divides the two sides in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. Understood? So we may get some problem where it may say prove that this line is parallel to this. So in that you have to attack whether the ratios are same, then you can conclude, and you will write by converse of BPT. So you should know this. अच्छा, इसका जो चालू भाषा नाम है ना, वो है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. और आजकल ये एक्सेप्टेबल वर्ड है, बाय BPT लोग लिख लेते हैं. जैसे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वैसे लिख लेते हैं. तो जेनजी रिलैक्सेशन है इस यहाँ पे. ठीक है, अब चले इसकी प्रूफ को देखते हैं. ठीक है, इसके प्रूफ को देखेंगे. आइए, तो सबसे पहले एनीवन हैज एनी डाउट टिल द स्टेटमेंट पार्ट? नो डाउट टिल द स्टेटमेंट पार्ट मींस वी गो टू द प्रूफ पार्ट. ओके, सो लेट्स गो टू द प्रूफ पार्ट. So I'll make this small now. Okay, so before we do a proof of this, we will need a construction. So our construction will be that we will join BF and we will join EC. We will join BF and join EC. So please write down number 1, join BF and EC. अब देखो, अब लिखने में एकदम चढ़ गया. फरहान नाइट्रेट और प्री रेजुलाइजेशन, इनको ढूंढने चले गए आप. अब जिंदगी का 1 मिनट रिवाइंड करो. क्या ये दो पैरेलल लाइन है? क्या ये दोनों ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड पैरेलल है? ये एरिया सेम आएगा. यही आपके एनसीईआरटी में लिखा रहेगा वाई. तो हमने आपको वाई पहले ही बताया वाई, लेकिन आप तो लिखने में मशगूल हो गए. फरहान नाइट्रेट, ये मेरे 2 दोस्तों के नाम हैं, फरहान और राजू. तो
अपने जिंदगी का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो ये क्यों ज्वाइन किया। इसको इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि ये बनते हैं ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड सेम एरिया, ये याद रखने का है। यानी कि इधर पे एक ठो लाइट बल्ब जलना चाहिए। अगर आप भूल गए एग्जाम में तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, ट्राइंगल्स सेम बेस एंड सेम पैरेलल। बहुत बच्चे होते हैं जो एक दिन रात से पहले पढ़ेंगे, वो याद ही नहीं आया यार यहां से वो करना था। ये आपको याद होना चाहिए आपने ये क्यों किया। सेकंड, नंबर टू में हम क्लिक करेंगे ड्रॉ। अच्छा यहां से ले लो से FM एंड से EN परपेंडिकुलर टू FM को किस पे परपेंडिकुलर करेंगे, AE एंड AF रेस्पेक्टिवली। सम्मान दीजिएगा, रेस्पेक्टिवली मतलब समझे ना, अपने ही दोस्त के साथ घूमना है ना। दोस्त आगे जाके दोस्तनी बन जाता है वो अलग बात है। अतिश हंस रहा है, हाँ अपने ही दोस्त के साथ अतिश घूमना है। हाँ, लेट्स गो फॉर टी एंड कॉफी with someone else. So let's draw our perpendiculars, and whatever you're doing on constructions, that's always in dotted form. So we have one perpendicular which is falling out here and one perpendicular which is falling out here, and make sure you show your perpendiculars. और भाई साहब यहाँ पे भी एक लाइट बल्ब मोमेंट ले लो, बत्ती जलनी चाहिए आपको यहाँ पे। हैं जी, यहाँ पे एरिया का सौदा होगा, इसीलिए आपने वो परपेंडिकुलर बनाया, वरना आपने परपेंडिकुलर बनाया क्यों, है ना। अच्छा, डिवाइड्स इन द सेम रेशियो, ये तो अपने स्टेटमेंट लिखा, तो स्टेटमेंट के साथ एक चीज मैं भूल गया था। नंबर 1 इज ऑलवेज स्टेटमेंट, नंबर 2 इज ऑलवेज टू प्रूव। करना क्या है, कहना क्या चाहते हो। सेम रेशियो, सेम रेशियो का मतलब होता है AE बाय EB is equal to AF by FC। समझ में आया। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं हमारा प्रूफ पार्ट। प्रूफ मैं ही तो भूल नहीं गया, यथार्थ करेगा क्या। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एरिया ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ट्राइंगल AEF। क्या मैं AEF के एरिया को ऐसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू AE इंटू ये E क्या लिया था हमने, EN लिया था ना, EN और FM। हाफ AE इंटू FM लिख सकते हैं, और साथ में इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ इंटू क्या लिखो, AF इंटू EN लिख सकते, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ, दोनों एक ही चीज है वैसे, एरियाज आर सेम। Okay, you don't omit everything in your book. Let me just write area triangle AEF. Okay, don't omit everything. This is your first part, which is equal to half into AE into Advait, thank you, into FM, and Angad also thanks. AE into FM, which should be equal to half into AF into AF into EN. ये वाला पार्ट ठीक है। This we have already done. Okay, so I'm keeping it in small. This we have done. Then instead of taking those triangles में गड़बड़ी हो गया है। Consider triangle. Now see the triangle. We'll take the triangle as EBF. Okay, EBF and triangle EBF. So we'll take FCE, EBF and FCE. These are the two triangles. ठीक है, now we will write area triangle EBF
must be equal to area triangle FCE. Okay, hold on. EBF, look, you are considering this triangle now. Okay, if you want to, sorry, you are considering this triangle and this triangle. Clear? These two triangles are again triangles on the same base and same parallels. Same base. The base is what? EF. So we will write here triangles on same base. And what is your that same base? बताओ. EF है आपका same base. समझ में आया? And same parallels. Now what are your same parallels? Your same parallels are EF parallel to BC. Clear? So they should be same. अब इसका एरिया बताओ. Let's compute the area of EBF. Half into EB. अब लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके साथ FM मल्टीप्लाई होगा. देखो तो अंगद, अब आप सेटिस्फाइड हो? ठीक है, गुड. इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू FC इंटू EN. FC इंटू EN, बस इतना रख लीजिए. So far fine. Now we go back to our steps. This one you just keep it, right? And now you start doing your this thing. So area triangle AEF divided by area triangle EBF should be equal to area triangle AEF divided by area triangle FCE. Why? Numerators are same, denominators are same. So from here, what do you write? Half into AE, thanks a lot, हाँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, FM divided by, इसका एरिया क्या है बेटा? हाफ into EB into FM should be equal to half into AE हो गया, ये था AF के साथ EN divided by half into FC into EN. फाइन. अब आप अपना मनपसंद काटाकुटी कर लीजिए. ठीक है अद्वैत? अभी गुड, चौकन बच्चा एकदम. AE by EB is equal to AF by FC. ये प्रूव्ड हो गया आपका. 5 मार्क्स. ठीक है, बस ये. अब यहां से जो इंटरेस्टिंग चीज होता है, ऑल ऑफ यू गॉट दिस बेटा. फर्स्ट पार्ट वाज करेक्ट, सेकंड पार्ट वाज आल्सो, ओनली दैट द ट्रायंगल्स base had to be taken different. That is where we went gone wrong. All fine. See, going wrong में एक अच्छा चीज होता है, आपको ये पता चल जाता है आपको प्रूफ कैसे लाना है. अल्टीमेटली इसके साथ इसका परपेंडिकुलर लेना है. अब यहां से ये जो फाइंडिंग है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं. ठीक है, लेट्स मेक इट लिटिल बिट स्मॉलर. ओके, अब 1 मिनट, लेट्स मेक द एंटायर थिंग स्मॉल. ये फाइंडिंग से बहुत सारे फाइंडिंग्स आते रहेंगे. This you have got. This is the standard finding. Some other finding is you somersault them. EB by AE can also be equal to FC by AF. ये एक फाइंडिंग हुआ. एक और हो गया, इसमें 1 जोड़ दो दोनों साइड पे. ठीक है, AE by EB was always equal to AF by FC. ये तो इक्वल ही था, ये हमने प्रूफ किया. तो हमने इसको एक डेयरी मिल्क दिया, तो इसको भी एक डेयरी मिल्क दिया. अब भी इक्वल रहना चाहिए. ठीक है ना. तो इन दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा? नीचे EB रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा? AE प्लस EB. इधर हो जाएगा AF प्लस FC डिवाइडेड बाय FC. यानी कि एक और अच्छा चीज मिला इस बार, पूरा बाई छोटा. सो यू विल गेट AB by EB
इज इक्वल टू AC बाई FC। तो ये एक फाइंडिंग हो गया आपका, ये एक फाइंडिंग हो गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो, वो भी एक फाइंडिंग है। EB बाई AB is equal to FC by AC. So whenever you get problems, children, then another finding is, which will be by subtracting AB by यहाँ पे क्या आया हमें, EB आया, AB by AE will also be equal to AC by AF. This is also one finding. This by this by this, ये भी finding है। Similarity में ये सब मजेदार है। इसका रेसिप्रोकल भी एक फाइंडिंग हो जाएगा, AE by AB। ये सब आपको प्रूफ नहीं आएगा, बट इन मेनी प्रॉब्लम्स यू मे नीड टू यूज इट। जस्ट मेक श्योर दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर सेम। फर्स्ट यू फाउंड आउट छोटू बाई छोटू इक्वल टू छोटू बाई छोटू, देन वी फाउंड व्हाट somersaulting टेओ बाई टेओ इक्वल टू टेओ बाई टेओ, देन वी फाउंड आउट होल बाई ऊपर इज इक्वल टू होल बाई ऊपर, होल बाई नीचे इज इक्वल टू होल बाई नीचे, नीचे बाई होल इज इक्वल टू नीचे बाई, सब बस कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। और सब अगर भूल गए तो एक कॉमन चीज दिमाग में लगाओ, कॉमन चीज, और इस पे आज क्लास छोड़ते हैं। बड़ा वाला ट्राइंगल को देखो, मन की मुराद से देखो, और छोटा वाला ट्राइंगल को देखो, AEC, क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है? दिस एंगल इज कॉमन फॉर बोथ, पैरेलल लाइन है तो ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं हुआ, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हुआ, इसीलिए तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये जो ऊपर का छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको, ये और बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर है, AEF, and this triangle is what beta, ABC. Now are you all that idiots that you don't know ratio of corresponding sides? You play here beta, यहाँ की जगह खोल लो दोनों ट्राइंगल को, ये दोनों सिमिलर होंगे ना, दोनों का ये एंगल सेम है, और ये लाइन इसको पैरेलल है, इसका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी सेम है। बस आपको इतना कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ थ्योरम याद करो और फिर दोनों ट्राइंगल को अलग नजरिए से देखो, and then put all your proportionality criteria. Have you found? Did you understand that logic which I said? That is more important because you cannot remember all these things. But as you do problems, you will understand छोटा by छोटा, बड़ा by बड़ा। अच्छा, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये एक ट्रेपीजियम है, इसको अगर ऊपर कर दो ना तो ये मीट करता है ये पे जाके, इसीलिए वो रेशियो भी उसके बराबर है, सिमिलर। फाइन, नेक्स्ट क्लास में सिमिलैरिटी के कुछ और क्राइटेरियाज एंड विल स्टार्ट प्रॉब्लम्स विद आवर नेक्स्ट क्लास। सो टुडे ट्राई एंड गो एंड प्रैक्टिस दिस एंड आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आता ही है 100, एक ना एक पेपर में ही आएगा ही आएगा, एंड देयर आर 7 सेट्स ऑफ पेपर्स नाउ, 7 और 6 सेट्स, एक में तो आएगा ही 100, एंड दे कम बाय रीजन। अगर किसी रीजन में एक सेट आया, उसी का 3 डिफरेंट मल्टीपल्स कम, means your question cannot be different from his question, the numbers might be different. So किसी रीजन में अगर ये क्वेश्चन चला गया, लेंगे नंबर पे, ठीक है।